سو آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 31 ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ بخش کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب بولو آمین آمین۔ سب کے اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں۔ تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے تیرے ہیں، پاک فرشتے ہمیں تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا تیرا ہے پاک روح ہمیں لے تاکہ کر ہم تیرے کلام کو سمجھیں تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں اور سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم آزاد ہوں اپنی اپنی پریشانیوں سے اپنی بیماریوں سے ہر طرح کی تنگ دستی سے ہر طرح کے بندھن سے ابلیس کے ہر طرح کے بندھن سے۔ اے خداوند ہم اس کلام سے پیار کرتے ہم ہیں، اس کلام سے پیار کرتے یہ ہمارے خوش رہنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے خوش رہنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے، شیطان کو شرمندہ کرنے یہ کی وجہ شیطان ہے۔ کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے۔ اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو ہماری زندگی سے چرا نہ سکے۔ اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے، مسیح کے نام میں آمین۔ ہاللویا۔ سو آج ہم نے خداوند کے زندہ بخش کلام میں پڑھا، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ہاللویا۔ سو بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان یہودیوں سے جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم میرے کلام کے اوپر قائم رہو گے تو تم کس سے واقف ہو جاؤ گے؟ سچائی سے واقف ہو جاؤ گے، تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ تمہیں آزاد کر دے گی۔ ہاللویا۔ سچائی کیا ہے؟ سچائی خداوند کا زندہ بخش کلام ہے، اور بائبل مقدس اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، خدا کلام تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یعنی خدا ہی کلام ہے، اور یہی کلام جب مجسم ہو کر زمین میں آیا، یعنی وہی سچائی جو مجسم ہو کر زمین کے اوپر آئی، تو بائبل مقدس کہتی ہے جب تم اس سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو یہ سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ آزاد کر دے گی۔ یا وہی سچائی جو مجسم ہو کر خدا کا کلام جب مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا اور وہ لوگوں کے بیچ میں رہا، اور جو اس سے واقف ہو رہے تھے، میرا اور آپ کا زندہ خداوند انہیں ہر طرح کے جوئے سے آزاد کر رہا تھا، انہیں ہر طرح کی بیماری سے آزاد کر رہا تھا، انہیں ہر طرح کے بندھن سے آزاد کر رہا تھا، انہیں ہر طرح کی تنگ دستی سے آزاد کر رہا تھا، انہیں ہر طرح کے شیطان کے بندھنوں سے آزاد کر رہا تھا۔ آمین۔ آج یہی خداوند ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کے کلام کے اوپر قائم ہیں یا ہم نے کوئی نیا رستہ اپنا لیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تو خیرات کرے تو تیرا جو دائنا ہاتھ کرتا ہے وہ بایاں ہاتھ نہ جانے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کلام ہے۔ اس نے کہا جب تم اس کے اوپر قائم رہو گے تو تم حقیقت میں میرے کیا بنو گے؟ تم میرے شاگرد ٹھہرو گے اور تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے اور سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ تمہیں آزاد کر دے گی۔ سو میں آج اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں، کیا اس کلام کے اوپر قائم ہیں کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں، جب ہمارا دایاں ہاتھ خیرات کرتا ہے تو کیا ہمارا بایاں ہاتھ جانتا ہے؟ نہیں۔ آج تو ہمارا دھیان کس کی طرف لگا ہوا ہے؟ آج ہمارا دھیان لوگوں کو خوش کرنے کی طرف لگا ہوا ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے یسوع مسیح نے
जब पतरस ने उसे कहा कि खुदावंद मैं नहीं चाहता कि तू क्रॉस के ऊपर चढ़ाया जाए, ऐसा दिन ना आए, ऐसा वक्त ना आए, तो खुदावंद ने कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए क्या है, ठोकर का बायस है। तू किन की बातों का ध्यान करता है, तू लोगों की बातों का ध्यान करता है, तू खुदावंद की बातों का ध्यान नहीं करता। तेरा ध्यान किन की तरफ है, तेरा ध्यान लोगों की तरफ है। इसका मतलब है कि जब एक इंसान का ध्यान लोगों की तरफ होता है तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ऐ शैतान तू कहां हो जा, तू दूर हो जा। क्योंकि लोगों की तरफ ध्यान करना, लोगों की तरफ आपको मुखातिब करना, ये किसका काम है, ये शैतान का काम है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब शाऊल का ध्यान लोगों की तरफ था और दाऊद का ध्यान खुदावंद की तरफ था, शाऊल जो है वो लंबा नहीं चल पाया और दाऊद बाइबल मुकद्दस कहती है अपनी पूरी उम्र करके अपने बाप दादा के साथ सोया। हालेलुया। क्योंकि शाऊल से गुनाह हुआ था, उसे गलती हुई थी, और इवन उसका गुनाह बड़ा नहीं था, और जो पहाड़ी से जब नीचे उतरने लगे तो शमूएल से कहता है कि देख मुझे अपने साथ लेके चल, ऐसा ना हो कि जब लोग मुझे अकेले नीचे जाते हुए देखें तो मेरे बारे में बातें करें। उसे इस बात का पता नहीं था कि खुदावंद का पाक रूह मुझसे जुदा हो चुका है। उसे इस बात का पता नहीं था कि मुझे लोगों के बारे में नहीं सोचना, मुझे खुदावंद को राजी करना है, मुझे खुदावंद के पास जाके उससे माफी मांगने के खुदावंद मुझसे गलती हुई है, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। लेकिन उसका ध्यान लोगों की तरफ था। शमूएल से कहता मेरे साथ चल, अगर मैं अकेला गया तो पता नहीं लोग मुझे क्या क्या कहेंगे। ध्यान कहां था, लोगों की तरफ। और अगर इसके बरक्स हम देखते हैं दाऊद के, तो जब दाऊद से गलती हुई, दाऊद से गुनाह हुआ, इवन के दाऊद का गुनाह जो है वो शाऊल से बड़ा था, लेकिन उसका ध्यान किस तरफ था, उसका ध्यान खुदावंद की तरफ था। वो क्या कह रहा है 52 ज़बूर में कि ऐ खुदावंद अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, वो हड्डियां जो तूने तोड़ दी है उनको फिर से क्या कर, उनको फिर से शाद कर, मुझे खुश और खुर्मी की क्या कर तू खबर सुना। किस तरफ ध्यान था, खुदावंद की तरफ ध्यान था। इवन के लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, गालियां भी देते थे। एक बंदा जो उसे गालियां दे रहा था, उसे पत्थर मार रहा था, तो उसके एक खादम ने कहा कि अगर तू मुझे हुक्म दे तो अभी हम इसको सजा दें, तो उसने कहा इससे कुछ ना कहो, ये जो भी है ये खुदावंद की तरफ से है। हो सकता है खुदावंद इसको खड़ा किया हो। इसका मतलब है एक इंसान उसे गालियां दे रहा है, फिर भी उसका उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं है, उसका ध्यान किस तरफ है, मेरे और आपके जिंदा खुदावंद की तरफ। उसने कहा हो सकता है ये खुदावंद की मर्जी हो। हालेलुया। उसका ध्यान खुदावंद की तरफ था। फिर खुदावंद ने दाऊद को माफ किया और खुदावंद ने दाऊद को फिर से क्या कर दिया, बहाल कर दिया। लेकिन शाऊल को अगर आप देखते हो तो शाऊल जो है वो बहाल नहीं किया गया, बल्कि खुदावंद ने उसकी कुर्सी ली और किसे दे दी, उसे दाऊद को दे दी। और बाइबल मुकद्दस कहती है जब दाऊद का ध्यान खुदावंद की तरफ था तो दाऊद जो है वो बुढ़ा होकर अपनी पूरी उम्र करके बाप दादा के साथ सोया। सो आज हमें ये देखना है कि क्या हम उसके कलाम के ऊपर कायम हैं या सिर्फ हम अपना ज़हन लड़ा के अपने आप को हम उस तरफ लेकर जा रहे हैं जो जिसका बाइबल हुक्म नहीं देती, इसके बारे में बाइबल नहीं बताती। उसने कहा अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में तुम क्या ठहरोगे, तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर तुम्हारा ध्यान लोगों की तरफ नहीं होगा, अगर तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ होगा तो डेफिनेटली तुम क्या ठहरोगे, तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से मेरे पास आएंगे और कहेंगे ऐ खुदावंद देख तेरे नाम से हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो खुदावंद कहते मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जो कुछ तुमने किया तुमने मुझे दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुमने लोगों को दिखाने के लिए किया। क्योंकि तुम लोगों से चाहते थे कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, लोग तुम्हें अच्छा कहें, लोग तुम्हारी तारीफ करते रहे। तो लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, उन्होंने तुम्हें अच्छा किया, अच्छा कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छे लफ्ज छोड़े। इसका मतलब है कि जो कुछ तुमने किया है, खैरात की व्हाटएवर जो तुमने किया है उसका बदला तुम जमीन के ऊपर पा चुके हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान किस तरफ था, लोगों की तरफ था। हालेलुया। तो आज हमारा ध्यान जो है वो लोगों की तरफ नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से तो होना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि किसके लिए करते हो, खुदावंद के लिए करते हो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब तुम मेरे कलाम को पूरा करोगे, तो उसी ने कहा हुआ है जब तू खैरात करे तो क्या कर, जो तू करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा बायां हाथ भी ना करे, तेरा बायां हाथ चाहने भी ना। ये उसका कलाम है। कहता जब तुम इसके ऊपर कायम रहोगे तो तुम हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। जब तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे तो सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे और सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी, तुम्हें आजाद कर देगी।
हालेलुया। सच्चाई खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम है, और वही कलाम जब मुजस्सम होकर जमीन के ऊपर रहा तो उसी कलाम से, जब वो जिस्मानी रूप में जमीन के ऊपर था, जब लोग उससे वाकिफ होते थे तो लोग अपनी बीमारियों से शिफा पाते थे, लोग बदरू गिरफ्तों बदरूहों से शिफा पाते थे, आजादी पाते थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक राह के किनारे जो है एक अंधा बैठा हुआ था, और यीशु मसीह वहां से गुजरे तो उसने कहा यहाँ पे ये क्या शोर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो किसी ने उसे बताया कि यहाँ से यीशु मसीह नासरी गुजर रहे हैं। तो इस बात से वाकिफ हो गया कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं। जब वो यीशु मसीह से वाकिफ हुआ तो बाइबल मुकद्दस आती है उसने ऊंची आवाज में चलाना शुरू कर दिया कि ऐ बिने दाऊद की संतान, मुझे क्या कर, मुझ पर रहम कर। हालेलुया। जब वो इस सच्चाई से वाकिफ हुआ कि यीशु मसीह जो है वही निजात दहिंदा है, वही खुदावंदों का खुदावंद है, वही बादशाहों का बादशाह है, वही मुझे इस अंधेपन से आजाद कर सकता है, जब वो इससे वाकिफ हुआ तो यीशु मसीह खड़े हुए और उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, मुझे आंखें चाहिए, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि तू ही खुदावंदों का खुदावंद है, तू ही बादशाहों का बादशाह है, तू ही मुझे इस अंधेपन से क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है। इस बात से मैं वाकिफ हो चुका हूं। बाइबल मुकद्दस कहती है जब वो इस सच्चाई से वाकिफ हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे आजाद कर सकता है, मेरे इस अंधेपन से वो मुझे नई आंखें दे सकता है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, तू बीना हो जा। चलिए, जब वो सच्चाई से वाकिफ हुआ, जब वो यीशु मसीह से वाकिफ हुआ, सच्चाई क्या है, खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम, और वही कलाम जब मुजस्सम होकर जमीन के ऊपर आया तो वो अंधा जब उससे वाकिफ हुआ तो यीशु मसीह का वो कलाम पूरा हुआ कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, तुम्हें अंधेपन से आजाद कर देगी। हालेलुया। उसी अंधेपन से जो है वो बर्तमाई जो है वो क्या हो गया, वो आजाद हो गया। हालेलुया। आज अगर हम रूहानी तौर पे अंधे हो चुके हैं तो हमें खुदा के कलाम से वाकिफ होने की जरूरत है, हमें इस सच्चाई को जानने की जरूरत है ताकि खुदावंद हमारी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करे, हम इस रूहानी अंधेपन से आजाद हों और उन चीजों को देख सकें जो खुदावंद हमें दिखाना चाहता है, ताकि हम उसके कलाम के ऊपर कायम रहे और हकीकत में उसके क्या बने, उसके शागिर्द बने और इस सच्चाई से वाकिफ हों और सच्चाई से हम क्या हो सके, आजाद हो सके। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में बहुत से आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है यीशु मसीह पहाड़ी से नीचे आए तो एक कोढ़ी उनके पास आ गया, उसे पता था, वो भी इस बात को जानता था कि यही वो कलाम है जो मुजस्सम होकर जमीन के ऊपर आया है, अब मैं इससे वाकिफ हो चुका हूं, अब ये मुझे क्या करेगा, मुझे इस कोढ़पन से क्या कर देगा, आजाद कर देगा। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने यीशु मसीह के पास आया और कहता है, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो तू मुझे क्या कर सकता है, तू मुझे पाक साफ कर सकता है। अब जब भी प्रेयर करो हमेशा खुदावंद से कहो, खुदावंद अगर तू चाहे तो तू मुझे हर तरह की गंदी रवश से, बुरी आदत से क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है। अगर तू चाहे तो तू क्या कर सकता है, मुझे हर बीमारी से आजाद कर सकता है, तू मुझे गरीबी से आजाद कर सकता है, तू मुझे भांजपन से आजाद कर सकता है, तू मुझे शुगर से आजाद कर सकता है, तू मुझे इस कैंसर से आजाद कर सकता है, तू मुझे इस कोरोना वायरस से आजाद कर सकता है, तू मुझे इस टीबी से आजाद कर सकता है, तू मुझे नया ब्लड दे सकता है, तू मुझे हर तरह की बीमारी से, हर तरह की कमजोरी से, हर तरह की गरीबी से, हर तरह की लाचारी से, हर तरह की तंगदस्ती से, हर तरह के बुरे हालात से तू अगर चाहे तो तू मुझे आजाद कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जब उसने कहा कि खुदावंद अगर तू चाहे तो तू मुझे क्या कर सकता है, इस कोढ़ से आजाद कर सकता है, तो यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू आजाद हो जा। क्यों? क्योंकि तू सच्चाई से वाकिफ हो चुका है और मेरा ये कलाम है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी, तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए, इस कोढ़ी से पाक साफ हो जाए। तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो कोढ़ी जो है वो फौरन उस कोढ़ से पाक और साफ हो जाए। हालेलुया। जब आप खुदावंद से प्रेयर करेंगे तो वो आपको कहेगा कि मैं चाहता हूं कि तू भांजपन से आजाद हो जा, मैं चाहता हूं कि तू हर तरह के कर्ज से आजाद हो जा, हर तरह की गरीबी से आजाद हो जा, इस कोरोना वायरस की वबा से तू आजाद हो जा, दुनिया के बुरे हालात से तू आजाद हो जा, हर तरह की बुरी कंडीशन से तू आजाद हो जा। मैं चाहता हूं कि तू कैंसर से आजाद
आजाद हो जा। मैं चाहता हूं कि तू हर तरह की बीमारी से, टीबी से, एड्स से, हर तरह की शुगर से, हर तरह की जो भी मोहल्लत वबा है, मैं चाहता हूं कि तू उससे आजाद हो जा। जब आप इस तरह प्रेयर करेंगे वो आपको आजाद करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। सो आज हमें सबसे बड़ी बात जो है, हमें इस सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह के वाकिफ होने की जरूरत है कि वो कहता है जब तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो तुम हकीकत में मेरे क्या ठहरोगे? शागिर्द ठहरोगे। सिर्फ बातों से नहीं कि यीशु 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 मसीह ये, यीशु मसीह ऐसे करता है, वो दो कहता है जब तुम मेरे कलाम को पूरा करोगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जब किसी ने कहा कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, यीशु मसीह ने कहा ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उसके ऊपर क्या करते हैं? अमल करते हैं। जो खुदा का कलाम सुनते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो खुद को धोखा देते हैं। सो आज हमने देखना है क्या हम खुद को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे। हमने क्या करना है? उसके कलाम के ऊपर कायम रहना है ताकि हम हकीकत में क्या बन जाए? उसके शागिर्द बन जाए। हालेलुया। दुनिया की कंडीशंस चाहे जो मर्जी कह रही है, हालात चाहे जो मर्जी कह रहे हैं, मैं आपको खुदावंद का खादिम होते हुए ये कहता हूं, आज भी अगर लोग हकीकत में इस कलाम से वाकिफ हो जाए, इस सच्चाई से वाकिफ हो जाए, इस बात से इकरार कर ले, इस बात के ऊपर ईमान ले आए कि यीशु मसीह जो है वही निजात धंधा, वही खुदावंदों का खुदावंद, वही बादशाहों का बादशाह है, अगर वो इस सच्चाई से वाकिफ हो जाए तो वो मेरा जिंदा खुदावंद जो एक कोढ़ी को उसके कोढ़ से पाक साफ कर सकता है, उसके कोढ़ से आजाद कर सकता है, एक अंधे को एक अंधेपन से आजाद कर सकता है, एक 12 साल की लहू बहने वाली औरत को उस बीमारी से आजाद कर सकता है, एक वो औरत जो 18 साल से कुबड़ी थी उसे उस कुबड़ेपन से आजाद कर सकता है। एक वही खुदावंद वो उस इंसान को जिसके अंदर लश्करों का लश्कर था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हजारों की तादाद में बुदरूहें थी, गंदी हुई थी, अगर वो उनको आजाद कर सकता है तो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद एक सेकंड में इस दुनिया को इस वबा से क्या कर सकता है? आजाद कर सकता है। अगर हम उससे वाकिफ हो जाए, इस सच्चाई के कलाम से वाकिफ हो जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, बहुत से आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे कि बहुत से ऐसे बादशाह थे, बहुत से ऐसे लोग थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर आप देखते हो कि जब 12 साल की औरत जिसे लहू बहता था, जो बीमार थी, वो कहती है, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो अपना सारा माल धन दोनों लुटा बैठी थी और बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुकी थी, हकीमों से, तबीबों से, डॉक्टरों के पास जा जाके उसने बहुत सी तकलीफ उठाई, लेकिन वो अपनी उस बीमारी से आजादी ना पा सकी। लेकिन कब? जब वो इस सच्चाई से वाकिफ हुई कि खुदावंद खुदा जो है, यीशु मसीह राजा जो है, वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो हर तरह की बीमारी से आजाद करने की ताकत रखता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो कोढ़ियों को पाक साफ करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो हर तरह का अपना हर तरह से अपना जलाल ज़ाहिर कर सकता है। जब वो इस सच्चाई से वाकिफ हुई तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो काम जो कोई डॉक्टर नहीं कर सका, वो काम जो कोई हकीम नहीं कर सका, वो काम जो कोई तबीब नहीं कर सका, वो मेरे और आपके जिंदा खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह ने जब उसका पल्ला छुआ गया तो मेरे और आपके जिंदा खुदावंद ने क्या किया? उससे उस बीमारी से आजाद किया। हालेलुया। आज इस पूरी दुनिया को इस बात से वाकिफ होने की जरूरत है कि यीशु मसीह जो है वो क्या है? वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है, वही जो है इस कंडीशन से हमें क्या कर सकता है? हमें आजाद कर सकता है। हमें इस बात से वाकिफ होने की जरूरत है, इस सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत है, क्योंकि आज कलाम में कह रहा है कि अगर तुम मेरे कलाम के ऊपर कायम रहोगे तो तुम हकीकत में क्या ठहरोगे? मेरे शागिर्द ठहरोगे, और तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे और ये सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? की कंडीशन से आजाद कर देगी। सो आज हमें क्या होने की जरूरत है? हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि क्या हम उसके कलाम के ऊपर कायम हैं? क्या हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं? अगर करते हैं तो फिर हकीकत में हम उसके क्या हैं? हम उसके शागिर्द हैं। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये किसी पास्टर के अल्फाज नहीं है, ये खुदावंदों के खुदावंद, ये बादशाहों के बादशाह के अल्फाज हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद जो है वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अज़मत देता है, अपने कलाम को इज्जत देता है। और उसी के ये अल्फाज हैं, जब तुम इस सच्चाई से वाकिफ होगे तो ये सच्चाई चाहे जितनी मर्जी बुरी कंडीशन हो, चाहे जितने मर्जी दुनिया के बुरे हालात हो, ये सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा
कि जब तुम मेरे कलाम से वाकिफ होगे और उस पर कायम रहोगे तो तुम हकीकत में क्या करोगे, तुम मेरे शागिर्द होगे। और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी, तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। अगर आपने बरकत पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन।